Good evening, everyone. I'm here, like Ms. Harshita introduced, she gave a very beautiful introduction to the topic itself, POSH. Now, as the name suggests, that POSH is the prevention of sexual harassment. And as per the law that was given in 2013, it has now become a mandate for every organization that employs more than 10 or 10 people to set up an internal committee in their organization for the purpose of resolution of any kind of complaints related to sexual harassment qua the women working in that workplace. So today I am endeavoring to give you a very precise and short introduction to the act also, and also at the same time to what it entails. क्या है ये एक्ट, क्यों आया, इसका पर्पस क्या है, इससे क्या फ़ायदा हुआ महिलाओं को, और क्यों ही वो पुरुष इसके बारे में सुने जो कई बार मुझसे कहते हैं कि मैडम आपने हमें बिठा लिया है, हम करें क्या इसमें, मतलब ये एक्ट तो लेडीज़ के लिए बन गया है, इसमें सभी कुछ तो लेडीज़ के लिए है, हम यहाँ पर बैठे भी क्यों हैं। आपका एज अ मेल इस अवेयरनेस सेशन में बैठना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपको भी अपने डिफेंस मैकेनिज़्म पता चल सके, आप ये जान सकें कि अगर आपके खिलाफ खुदा ना खास्ता कोई पॉश की कंप्लेंट आई है, एंड स्पेशली अगर वो मैलिफाइडी कंप्लेंट है या झूठी कंप्लेंट है, तो क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ आपको निकालनी है जिससे आप उस कंप्लेंट का सामना कर पाएँ। और महिलाओं के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए विद एन इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्क प्लेस, इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट मोर विमेन कम आउट and they participate in the workforce, and they increase the production and their own contribution towards the GDP of India. How will they participate in a majority? By us making the workplace safer for them. So with this at the back of our mind, let us go ahead and see what POSH is all about. I would like to start with a short video so that we can bring an introduction with an audio visual medium and you all are aware as to what we are going to talk about today. रविवार की सुबह या मंगलवार या रोज की गाड़ी, मैं अपना काम कर रही थी और एक गिलास पानी तो पीने दे, अभी शाम को प्यास लगी और भी पानी पीने का असली मजा तो शेल्फ में ऊपर रखे हुए ग्लास से ही आता है। When we are uploading these videos on YouTube, we will have to be careful because the videos will have copyrights. Right? So we will remove the videos. Copyright infringement हो जाएगा. Content हमारा है. अजी नौकरी की बदौलत है तो इतना बोलने का आपको पता है। और ये देखिए लगन से मेहनत। आप सोच रहे होंगे ना ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत करके बता भी दो तो कोई विश्वास नहीं करता, और अगर कोई विश्वास कर भी ले तो साथ नहीं। एक सुरक्षित कार्यस्थल हर महिला का अधिकार है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हिम्मत दें, इन पर विश्वास करें, इनका साथ दें। So as you saw that it becomes everybody's responsibility
to ensure that the workplace is not only safe for women, but they also feel encouraged to go there without any fear or trepidation and to give their very best to the workplace. Now, with this in view, let's see what exactly is the aim of this act. The aim of this act is to provide protection to women from sexual harassment at workplace and for the prevention and redressal of complaints linked to it, to ensure a safe and secure working environment for women, and also to ensure that initially, if you go and see, you will realize that because this act came about in 2013 and also certain changes were made in the Indian Penal Code. If you see before it, there was a vacuum in the Indian legal system, in the sense that there was nothing to show for any kind of sexual harassment that was being faced by a woman. तो अगर आज कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट होता है, तो ऐसा कोई भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी में था ही नहीं जिसके अंतर्गत कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाए। कि 2013 में जब ये पॉश एक्ट आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट आया, उसके बाद एक स्टैच्यूट बना ये, जिसके अंतर्गत अब प्रोसीडिंग्स चलती हैं। साथ के साथ कुछ चेंजेस इंडियन पीनल कोड में भी करे गए थे, जैसे 354 ABCD का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक ऑफेंस बनाया गया, स्टॉकिंग को एक ऑफेंस बनाया गया। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना। अब तक 2013 तक किसी महिला का अगर आप पीछा करते हैं तो इसमें कोई एक खास तौर पे एक ऐसा ऑफेंस नहीं था इंडियन पीनल कोड को जो इसको पीनलाइज करे। इसके साथ साथ वॉयरिज्म को एक ऑफेंस बनाया गया। वॉयरिज्म मतलब छुप छुप के किसी की गतिविधियों को देखना या उसकी रिकॉर्डिंग करना। आपको ध्यान होगा बहुत सारे इंसिडेंट्स आए थे जब मॉल्स में चेंजिंग रूम में कैमरा फिट कर दिए जाते थे, होटल्स में कैमरा फिट कर दिए जाते थे, जिसमें महिलाओं की आपत्तिजनक हालत में उनकी फोटोग्राफ्स खींची जाती थी। तो इसको फिर पिनलाइज किया गया वॉयरिज्म में। तो इसी परिवेश में ये एक्ट जो 2013 का ये आया, और मैं कहूँगी दैट दिस वाज अ लैंडमार्क स्टेप फॉर for the emancipation of women in India. Reason being that till now there was no special statute or protection that was there for the protection of working woman in her workplace. Now, what exactly is sexual harassment? अगर इसकी ऑफिशियल हम डेफिनेशन देखते हैं तो जो डेफिनेशन है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसको सेक्शन 2N ऑफ द एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस 2013 में दिया गया है। लेट्स हैव अ लुक। Sexual harassment in the workplace is defined as any kind of unwanted sexual approaches, demands for sexual favors, or any sexually motivated verbal or physical behavior that creates a hostile or unpleasant work environment. कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि वो अनवांटेड होना चाहिए। जो सेक्सुअल बिहेवियर है या जो सेक्सुअल अप्रोच है वो अनवांटेड होनी चाहिए। तो अगर किसी महिला का कंसेंट शामिल है और उस कंसेंट के चलते उसको कोई पुरुष अप्रोच करता है तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कंसेंट इज समथिंग दैट while it can be given, it can also be taken away. So you cannot say that if today I have consented to, for example, going out for a coffee with you, you cannot say that tomorrow you can demand that I go out for a coffee with you because I had consented to it yesterday. So consent is something that we have to ask for as a male again and again from a female, because she has the prerogative to take it away. Once she has given it, it does not mean that she has given it forever. So any kind of activity that is unwanted, any kind of demand that is there for sexual favor, any sexually motivated verbal or physical behavior which is creating an unpleasant feeling in the mind of the woman, that can be categorized as sexual harassment. Now, what exactly is what constitutes sexual harassment? Offering benefits. फॉर एग्जाम्पल आप महिला से कहते हैं कि भाई अगर तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे या डिनर पे चलने को मज़े करने चलोगी तो ही मैं तुम्हारी सैलरी में रेज दूंगा या तुम्हारे को एक प्रमोशन दूंगा। सो दिस वुड कैटेगोरिकली कम अंडर ऑफरिंग ऑफ बेनिफिट्स फॉर अ सेक्सुअल फेवर। देन वी हैव अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसमेंट्स। भाई कोई महिला आपकी कॉलीग आपके बराबर में बैठी है, आप उसके कंधे पे हाथ रख के बात करने लग जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के बात करने लग जाते हैं,
जबकि उसने आपको बता रखा है कि उसको ये पसंद नहीं है या आपको दिख रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह का बिहेवियर करते हैं, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट. देन वी हैव थ्रेट्स. ठीक है, आप प्यार से नहीं मान रहे तो हम आपको थ्रेट करके मनवाएंगे. आप चलोगे कैसे नहीं मैडम कॉफ़ी पीने के लिए हमारे साथ? आपको अच्छी जगह कॉफ़ी पिला रहे हैं, आपने कैसे मना कर दिया? कमाल है, चलना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लो हो सकता है ये दिन आपका आखिरी दिन हो इस कार्यस्थल पर. So this would definitely come under sexual harassment. Then we have visual conduct. So you're talking to a female, but your eyes are on her chest. Why can't you talk to her and look at her, eyes? Why can't you look at her face while talking to her? Why is it that you have to categorically stare at her body? Such visual gestures. Now आप कहेंगे जी हमने तो कोई ज़बरदस्ती करी नहीं, अब क्या आंखें भी फोड़ लें? बट ऐसा नहीं होता. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन लिविंग इन अ सोशल एनवायरमेंट. You have to interact with other people, and you have to categorically understand that any activity of yours that is causing an alarm or that is creating a hostile environment would definitely be categorically coming under sexual harassment. Then we have verbal conduct, so derogatory comments that you make to your female colleagues. मैडम आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, मज़ा आ गया आज तो देखकर. How is it? Who has given you the freedom to make such comments to her? And if you're doing it, then it is at the stake of your own presence in that workplace, because a complaint can be very well filed against you. Then we have the physical conduct. Of course, this is short sexual harassment where you are categorically harassing her by touching her at inappropriate places. It is a huge room, yet you feel constrained to brush past her whenever you want to go in her direction. All these things will come under sexual harassment. Now, like I said, coming too close to someone and making them feel uncomfortable, unwelcome touching, rubbing, hugging, pinching and patting, using profane language, making dirty jokes. So, one of the biggest reasons for sexual harassment is you need not be threatening towards someone. All you need to do is send them sexual jokes. And जैसे अरे भाई मेरी broadcast list में तो आप भी थे, क्या ही फ़र्क पड़ गया मैडम, मज़ा आया ना. So maybe she is not comfortable sharing these sexual jokes with you. She does not have that kind of a relationship with you. So how did you presume that she would be all right with you sending these sexual jokes to her or jokes of a sexual nature? Then we have sexual comments about someone's appearance or a body, and making sexually suggestive gestures like winking or staring or licking your lips when you look at a woman. So highly inappropriate, and of course she would feel so uncomfortable if you were to go ahead and behave like this at a place where she's coming to work day in and day out. Then sending sexually explicit material such as an email or a photo. So during the onset of COVID, we all understood that the online thing was it was a rage. Everybody was using online medium to teach, just like physics wala also and other things. So in case you are yourself not doing any such things, but in the background, for example, I am speaking to you, what if I had a sexually explicit poster right here at the background, which you would be forced to see because you are attending this session and you have to hear me, you have to listen to what I'm saying. But what if there was something sexually explicit available in the background? Would you not be offended if it was not to your liking? Then you have to make sure that not only your conduct but also your background is up to the mark, and nothing that is there within your vicinity is such that would offend the morality of some woman. So how do we identify? There are so many instances, where women would be like, यार समझ नहीं आ रहा, पता है मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं उसकी कंपनी में होती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सेक्शुअल हैरेसमेंट है या मेरा वहम है. There are such cases where the man is so clandestinely sexually inappropriate that a woman would start doubting her own sanity by thinking that, am I taking things too seriously? Or is this guy really being inappropriate towards me? So what you have to see is, it has to be, first of all, unwelcome. So if you feel that you have not given any kind of yes or a welcome sign to anybody to behave in a particular way, and yet that person goes ahead and does it, it is unwelcome. You have not asked for it. You did not say that it was okay to do so, right? And it makes you uncomfortable. So if you have checked any of these 4 boxes
it can definitely be termed as sexual harassment. Let's have a look at another video. मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप, उन्होंने ही बात शुरू की। बात करना गुनाह हो गया, कमाल। बात भी करे तो करे क्या? हुआ क्या? ठीक से बता। लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी। संतोष जी सामने से चलते रहे और मेरा रास्ता रोक दिया। अब रास्ता थोड़ी बदल लेंगे क्योंकि सामने से लेडीज आ रही है। एक ही दफ्तर में काम करते हैं, होगा। मैंने देखा उसके हाथ में खाने का डब्बा है, मैंने पूछ लिया भाई आज साथ में लंच है, बस इतना सा तो बोला। कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी चल रहा है, मैं बोला आइए साथ में लंच करते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर मैंने उन्हें आराम से मना किया। मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ, शायद उनको बुरा लग गया। अब बुरा तो लगता ही है ना, ऐसा भी क्या है? उससे 3 साल पहले से हो इस दफ्तर में, इसमें भी कोई चीज होती है। रिस्पेक्ट अपनी जगह। मैं समय पर अपना काम खत्म करती, सुबह टाइम पर आती, 1 घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी में कई बार। और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, जाने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये किस तरह की बात है? बात क्या है? इस सर पे जाए आप लेडी समझ के इनको टॉप पे पकड़ते नहीं, तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में। और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने, मुझे लगा डर गई शायद, तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश। अरे पिताजी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में, हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में। इतना सा बोला तो मुंह बना लिया, घूर के निकल गई वहां से। मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। श्वेता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना भी नहीं। हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, मेरा मतलब सोच सब ठीक है ना? क्या सोच रही थी? जो हुआ वो गलत था या नहीं? गलती से था या नहीं? या हुआ भी या नहीं? सच तुम जानती हो, सोचो मत। स्मिता जी सब ठीक है। ठीक तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। So, as we saw that what happens here is the fact that the woman herself is very unsure. अगर इस वीडियो को अगर हम एक क्लास सपोज जिसमें मेल फीमेल्स दोनों हैं एक कमरे में, अगर उनको 2 जगह हम डिवाइड कर दें और दोनों से ही पूछे तो मेल कहेंगे कि भाई इसमें ऐसी क्या बात हो गई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट आप कहेंगे। फीमेल्स कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हें तो समझ आएगा ही नहीं कि तुमने हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे करी, हमसे पूछो तो हमारे दिल से पूछो। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ा कि जब हम इंडियन पीनल कोड को देखते हैं, भारतीय दंड संहिता, उसमें ये कह रखा है कि इंटेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके हाथ से किसी की मृत्यु हुई है तो क्या आपकी इंटेंशन उसे मारने की थी, उसकी हत्या करने की थी, या गलती से अनजाने में आपसे ऐसा हो गया? तो इंटेंशन के बेसिस पे पनिशमेंट्स को अलग अलग लेवल का कर दिया गया है। अगर जान के कैटेगोरिकल प्लान्ड तरीके से आपने किसी की हत्या करी, उसको एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है। अगर स्पर ऑफ द मोमेंट पे
आप अपना आपा खो बैठते हैं और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए किसी की हत्या करनी पड़ती है। आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे किसी की हत्या हो गई अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उसका जो पनिशमेंट है वो कुछ और है। अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से आपकी किसी की हत्या हो गई, उसका पनिशमेंट कुछ और है। बट प्रॉब्लम विद द पॉश एक्ट इज दैट इट इज़ द इम्पैक्ट एंड नॉट द इंटेंट दैट मैटर्स। अब जैसे अगर इसी वीडियो का रेफरेंस अगर हम लें, मान लीजिए कि वो जो पुरुष इन्वॉल्व है इस सो कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट में, मान लीजिए अगर वो ये कहता है कि भाई मेरी तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैंने तो उनसे बस ये पूछा था साथ में खाना खा लें, मेरा मन ये था कि भाई क्योंकि नई नई आई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो इनको हम इंक्लूडेड फील कराएं, ये इनको ऐसा ना फील हुआ हो कि ये अलग थलग पड़ी हैं, कोई पूछ नहीं रहा, एंड शी शुड बी कंफर्टेबल विद एवरीवन। इस इंटेंशन से मैंने इनको खाने के लिए इनवाइट किया। और क्योंकि ये इतना, अगर हम लेमैन टर्म्स में आजकल के बच्चों की भाषा में बात करें कि क्योंकि ये इतना भाव खा रही थी, तो मैंने इनको ये भी समझा दिया कि भाई कोई तुम इतनी सुंदर तो नहीं हो जो तुम्हारे पीछे हम भागें, ये तो हम तुम्हारे को कंफर्टेबल करने के लिए तुमको इनवाइट कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे उनकी इंटेंशन जो भी रही हो उस समय, उसका इम्पैक्ट जो उस फीमेल पे पड़ा वो उसको ना तो कंफर्टेबल लगा और उसको उससे ऐसी फीलिंग हुई कि उसका हैरेसमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट जो पिनलाइज कर रहा है वो इम्पैक्ट को कर रहा है, इंटेंट को नहीं। तो इसीलिए हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दायरे को समझें और हम इस बात को समझें कि क्या चीज़ सामने वाले को बुरी लग सकती है। हाँ, कई लोगों का काफ़ी सारे मैंने जब वर्कशॉप्स इस तरह के लिए हैं, उसमें कई पुरुषों का ये भी कहना होता है कि भाई ऐसे क्या हम डर डर के अपनी ज़िंदगी जिएं, हम क्या मुंह खोलना ही बंद कर दें। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई देखा जाए तो काफ़ी सदियों से औरतों ने भी डर डर के ज़िंदगी जी है कि भाई अंधेरा हो गया है, घर से बाहर मत निकलो, अकेले कहीं मत जाओ। तो इसे अगर आप डर डर के जीना मानते हैं तो महिलाएं ये करती आ रही हैं इतने सालों से कि अब वो उनकी लाइफ में नॉर्मलाइज हो गया है। सो मच सो कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो लोग पलट के पूछते हैं उनसे कि भाई 9 बजे के बाद घर से बाहर कर क्या रही थी जो तुम्हारे साथ छेड़खानी हुई। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट आई एम नॉट अ फ्लैग बेरर ऑफ फेमिनिज्म, बट एट द सेम टाइम my intention here today is to make everybody realize that there are certain changes that are coming about in the society, and we have to change with the change in the society in order to keep abreast of the coming world. Otherwise, we shall be left behind and it is we who will be penalized. So yes, today there is an active need amongst everyone, be it a male or a female, to understand their boundaries and to behave accordingly. And if you feel that there is a certain dialogue that may result in offending someone, then refrain from using such dialogues, or think 10 times before opening your mouth or opening your eyes or using your body for that matter, your gestures, your background, everything. Now with this in mind, let us see what types of sexual harassment we have. First is the hostile work environment. So here what happens is such type of an environment is created in the workplace where it becomes difficult for the female to work, in the sense that her life will be made more difficult if she is not responding to certain requests of her seniors or her male colleagues. And it has been categorically told to her कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो देख लो भाई, ना तो तुम्हारा प्रमोशन होगा, जहाँ ज्वाइन करा है वहीं रह जाओगी, ऑफिस में तुम्हारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, यहाँ देखो सब कितने मज़े से रह रहे हैं, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, और वो जो हैं वो सेक्शुअल फेवर्स हैं। सो सच काइंड ऑफ अ होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर हर, वेयर शी फील्स कंस्ट्रेन्ड कि भाई ठीक है अब कॉफ़ी के लिए कह रहा है तो हाँ कर लो अपना मन मार के, वरना पता नहीं मेरा कहीं आज आखिरी दिन ना हो, राइट। देन वी हैव द क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो को अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो उसका मतलब होता है दिस फॉर दैट, तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो मैं जो तुमसे कहता जा रहा हूँ वो तुम करती जाओ तो सब कुछ अच्छा है, जो जो चाहोगी वो मिलेगा। जहाँ तुमने मेरे कहे अनुसार करना बंद किया या मना किया तो फिर कुछ भी हो सकता है, और जो मैं कह रहा हूँ वो सेक्सुअल इंटेंशन से कह रहा हूँ, वो सेक्सुअल फेवर्स हैं, तुम्हें मुझे ग्रांट करने पड़ेंगे, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, सस्पेंड भी हो सकता है तुम अपने करियर में एडवांस कर ही ना पाओ। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्विड प्रो क्यो।
Then we have the third party hostile environment. So this is comparatively a new kind of sexual harassment that we have started recognizing, but it was always there. So let us presume for a moment, पॉश एक्ट में ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ पे लागू होता है, बट सपोज मान के चलते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक फीमेल वेटर है, वेट्रेस है, और वो फॉर एग्जांपल स्नैक्स सर्व कर रही है, और कुछ गेस्ट आते हैं, पेट्रन्स ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब कस्टमर्स, और वो अगर आके उस महिला से दुर्व्यवहार करते हैं ऑफ अ सेक्शुअल नेचर, देन दिस बिकम्स थर्ड पार्टी होस्टाइल एनवायरनमेंट. सो मच सो दैट इवन दो दैट कस्टमर इज नॉट an employee of that restaurant, but he will still be covered under the act. एक सबसे बड़ा आपको एग्जांपल मैं दूं तो जो एयर होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस एम्प्लॉई हैं एयरलाइंस की, बट जो फ्लायर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो तो एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, बट फिर भी वो कवर होते हैं पॉश एक्ट में. और कैसे एम्प्लॉयर उनके ऊपर अपना जोर चलाता है, कैसे उनको कंट्रोल करता है कि भाई अगर आपने इसी तरह का दुर्व्यवहार किया, हम अपनी आईसी में इस कंप्लेंट को ले रहे हैं, और अब क्योंकि आपको दोषी पाया गया है तो अब आप हमारी नो फ्लाई लिस्ट में आ गए हैं. अब हमारी कंपनी आपको अपने प्लेन से कहीं नहीं लेके जाएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप हमारी कंपनी में इसके प्लेन में बैठें, क्योंकि आप दुर्व्यवहार करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं फीमेल्स का. Another video, let's see what this one tells us about. यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम खुल के नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं या डरते हैं. मेरे साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ है. मेरा सुपरवाइजर संतोष मुझे घूरता था. उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ यौन संबंध रखूं तो वह मेरी सैलरी बढ़वा देगा. यह सुनकर मुझे बहुत डर लगा, बहुत शर्म भी आई. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो हो रहा था उसके बारे में मुझे किससे बात करनी चाहिए. एक दिन सेल्वा ने मुझे बाथरूम में रोते हुए सुना. वह मेरे साथ फैक्ट्री में काम कर. मैंने उसे सब कुछ बताया. उसने कहा कि वह जानती है कि मुझे किससे बात करनी चाहिए. उस वक्त मुझे पॉश कमेटी के बारे में पता चला. सेल्वा ने मुझे सौरभ और अनीता से मिलवाया. कंपनी ने पॉश कमेटी के लिए इन दोनों को नियुक्त किया था और अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी. अनीता ने मुझे बताया कि हमारी कंपनी यौन उत्पीड़न के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करती है. मैंने उन्हें संतोष के बर्ताव के बारे में सब कुछ बताया. कुछ दिनों बाद पॉश कमेटी ने संतोष से भी बात की और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की. मेरी यौन उत्पीड़न की रिपोर्टिंग ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया. यही कारण है कि जब भी कोई यौन उत्पीड़न का शिकार बनता हुआ दिखता है, मैं उनसे कहती हूँ कि चुप न रहे. यौन उत्पीड़न को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है. देखिए, क्योंकि आप सभी लोग आईसी मेंबर्स हैं, अब इस वीडियो से हमने देखा कि सेल्वा को फीमेल वर्कर को बताने की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक आईसी एक पॉश कमेटी होती है और तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर अपना जो उत्पीड़न हो रहा है उसको रिपोर्ट करो. अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों सेल्वा को इस महिला वर्कर को बताने की ज़रूरत पड़ी? अभी रिसेंटली पिछले 1-2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आपको कैटेगोरिकली ऐसी जगहों पर ये नोटिस लगाने पड़ेंगे अपनी वर्क प्लेस में जिससे वहाँ पर कार्यरत महिलाओं को ये पता चले कि यहाँ इस वर्क प्लेस में एक पॉश कमेटी है. और अगर वो अपनी कंप्लेंट करना भी चाहती हैं तो उस पॉश कमेटी तक वो कैसे पहुँचे. पहले ये कहते थे कि भाई एक बॉक्स लगाओ, कंप्लेंट बॉक्स, उस बॉक्स में महिला अपनी कंप्लेंट डाले, बट वो बॉक्स भी कितनी पब्लिक प्लेस पे होता है, हो सकता है शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन पुटिंग हर कंप्लेंट देयर इन राइटिंग. So what we need is now, as per the Supreme Court directions, the guidelines that have been issued in this case, that every workplace that has a website, it is mandatory for them to report on the website that they have a POSH committee
and to give the names of the committee members and also their contact numbers and email IDs. So in case there is a woman who is feeling sexually harassed at her workplace, she can simply write to the any member of the POSH committee and take her complaint forward. Alright, so who can file a complaint under the Act? If we see, the Act talks about the filing of the complaint in the POSH committee, but we have to know as to who is it that can file a complaint. So any aggrieved woman of any age, employed or visiting any workplace, whether in the capacity of a regular, temporary, ad hoc or a daily wager, who alleges to have been subjected to any kind of sexual harassment by the respondent at the workplace, can file a complaint in writing against the harassment. However, the complaint must contain the name of the woman and the name of the aggressor. Now, the most important thing that you will notice here is that any aggrieved woman, we can say unfortunately this Act is not gender neutral, and under this particular Act the protection that has been provided only to women. So only a woman can take the recourse or redressal. She can seek redressal under this Act, and the other important thing is that the complaint has to be filed in writing, and it cannot be an anonymous complaint. एक बेनामी complaint नहीं हो सकती कि भाई एक ये मिस्टर सो एंड सो हैं और ये है ना महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए. अब इस तरह की एक बेनामी कंप्लेंट से आप इस एक्ट में अपनी कंप्लेंट से कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. रीज़न बीइंग दैट द वुमन हु सेज कि मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, शी हैज़ टू गिव हर नेम इन राइटिंग as well as the name of the person who has sexually harassed her. Both of them must be mentioned in the complaint. The complaint itself should be in writing, and only then it will be taken up by the POSH committee. Then Section 4 of the Act requires every workplace, like I said at the beginning of this, that every workplace with 10 or more workers to establish an IC, internal complaint committee devoted to hearing and addressing sexual harassment complaints. At least half of the members of this committee should be females. Now, if you look at the constitution of an IC, we have the presiding officer, then we have 2 employees, and then we have an external member. So, primarily एक presiding officer हर IC में होंगी, और वो presiding officer necessarily she has to be a woman at a senior position. Then we have to have one external member. Why do we need an external member in the IC? In order to maintain the sanctity of the IC, कि कोई भी bias ना हो इस IC में. एक बाहर का व्यक्ति इसीलिए लाया जाता है जो कि या तो किसी NGO से हो, ऐसी NGO जो कि the one that is used to working in the field of women. तो ऐसी NGO से आप किसी अगर external member को लाते हैं जो animal rights में काम करती है या फिर किसी और फील्ड में और जिसका कोई विमेन एमेंसिपेटरी इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक वैलिड मेंबर नहीं होगा. या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल मेंबर हो जो कि एक एडवोकेट हो, अगेन who has been working in the field of women related issues. So if you bring a corporate lawyer, or if you bring a tax lawyer or a civil lawyer in such field, then that will be inappropriate. And there are so many judgments where the high courts and the Supreme Court have said कि ये प्रॉपर एक्सटर्नल मेंबर नहीं था, इसीलिए इस आईसी को हम वैलिड आईसी नहीं मानेंगे. तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि महिला होंगी, एक एक्सटर्नल ऑफिसर जो महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, देन एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन हु आर अवेयर ऑफ द ऑल वुमेन रिलेटेड इश्यूज. सो कम से कम एक आईसी में 4 लोगों का होना अनिवार्य है, और इन 4 लोगों में से कम 50% महिलाएं होनी ही चाहिए. सो देर इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 4 members in any IC for it to be a valid one. It can be many more depending upon the number of employees in that particular organization, but it has to be at least a minimum of 4 members. And no matter how many members above 4 there are, there has to be a ratio of at least 50% of them being women. Then every IC or LC, now see we had said that 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग अगर कार्यरत हैं
तो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी. बट व्हाट अबाउट प्लेसेस दैट हैव लेस देन 10 वर्कर्स? इन दैट केस इफ यू हैव अ कंप्लेंट qua such a workplace, then you go to the local complaint committee, which is formulated at every district level. So that is what I say when I mean when I say LCC. So every LCC or ICC should hold a meeting every quarter, irrespective of any complaints. तो आपको quarterly IC की एक मीटिंग रखनी ही पड़ेगी. आप ये नहीं कहेंगे अरे भाई कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो सब बढ़िया है, बैठो आराम से. तो चाहे कुछ हो या नहीं हो, इसी बात को कहने के लिए कि हाँ इस बार भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, आपको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी क्वार्टरली. सो दैट मीन्स हाउ मेनी मीटिंग्स? 4 मीटिंग्स इन अ ईयर. IC and LC is required to review the status of implementation and steps were taken by the establishment for improvement of the said implementation of law in their organization. Its updates. तो अब आप 4 बार मिलेंगे जब साल में as ICC members, तो क्या ही डिस्कस करेंगे आप? सबसे पहले तो आप ये डिस्कस करेंगे कि क्या कोई कंप्लेंट आई है, अगर आई है तो उसका क्या निवारण किया गया, क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि 90 दिन के अंदर इस कंप्लेंट का निवारण होना अनिवार्य है. सेकेंडली, यू हैव टू डिस्कस दैट what awareness sessions, like this is a great awareness session that is happening today in physics wala. So any such session, any such training, has it taken place? If not, then why? And if yes, then well, good, and let's have more such training sessions, because this is now a mandate. अब ये compliance issue है, अगर कोई training session नहीं होता है तो आपकी compliance में कमी कही जाएगी. Now let us see. When we look at the POSH Act, we have to understand कि जो timeline given है इस एक्ट में वो बहुत टाइट है. ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट फाइल हो गई अब साल दर साल तारीख पे तारीख वाला सिस्टम इसमें नहीं है. बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है. तो कंप्लेंट फाइल होती है कंप्लेनेंट महिला के द्वारा, 7 दिन के अंदर अंदर उसको आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो अक्यूज्ड व्यक्ति है उसको. देन 3 महीने के अंदर अंदर जब तक ये कंप्लेंट वो महिला कब तक फाइल कर सकती है? सपोज आज एक इंसिडेंट हुआ है तो इस इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर अंदर उस महिला को वो कंप्लेंट फाइल करनी होगी. ऐसा नहीं है कि भाई 2020 में मेरे साथ ये हुआ था अब आज मैं कंप्लेंट फाइल करती हूँ. नो, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर दिस एक्ट. You can take the refuge of other remedies, but not under the POSH Act. So under the POSH Act, the limitation that is there to file a complaint under POSH is 3 months. या फिर अगर किसी कारणवश आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो इन राइटिंग आप वो रीज़न देंगे, आपको एक 3 महीने का और एक्सटेंशन मिलेगा लिखित में कारण बताने का कि आपसे डिले क्यों हुई है वो कंप्लेंट फाइल करने में. तो 3 + 3 months, a maximum of 6 months leverage is given in order to file a complaint under the POSH Act. देन आईसी के पास कंप्लेंट आई, उसके 7 दिन के अंदर आईसी ने अक्यूज्ड व्यक्ति को कंप्लेंट फॉरवर्ड करी और उसको 10 दिन का टाइम मिलता है जिसमें उसको अपनी रिप्लाई देनी होती है कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, इसमें आपको अपने डिफेंस में क्या देना है, क्या कहना है, आप अपनी रिप्लाई दीजिए. जब आईसी अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट होने से उसको 90 दिन के अंदर अंदर प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करना है. दैट इज़ वाई आई सेड दैट नो तारीख पे तारीख का सिस्टम इन द पॉश एक्ट. एवरीथिंग हैज़ टू बी रैप्ड अप इन 90 days. रीज़न बीइंग दैट द more time you give, there are more chances that the evidence can be tampered with. And also, in case that complaint happens to be true, it will be very difficult for that woman to continue to work in such an area where, her senior or her colleagues might be indulging in sexual harassment against her. So now, inquiry is completed within 10 days, 90 days. Then within 10 days from the completion of the inquiry, an inquiry report needs to be submitted by the IC to the employer. And from that day, within 60 days from the submission of the inquiry report, the employer needs to take an action on the said report. If the complainant woman or the accused person is not happy with the outcome of the inquiry report, she says कि नहीं भाई इसको punishment दी नहीं, इसको तो छोड़ दिया, या जो punishment दी है वो कम है, या the पुरुष says that नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे को उन्होंने क्यों punishment दे दी, इन्होंने वार्निंग दे दी है, मैंने तो वार्निंग के लायक भी कुछ नहीं किया, हम क्या आना बंद कर दें, हम क्या बोलना बंद कर दें. एनी काइंड ऑफ ग्रीवियंस दैट दे हैव विद द सेड इंक्वायरी रिपोर्ट, दे कैन गो अहेड एंड फाइल एन अपील विद इन 90 days from the date of the submission of the inquiry report. And in case it is proven that yes, sexual harassment did take place, in that scenario there are various organizations that say कम से कम 5 साल तक उस accused व्यक्ति की गतिविधियों पर
नज़र रखी जाए ताकि उसको याद रहे कि उसके खिलाफ एक इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल हो चुकी है और अब वो हमारी नज़रों में है, so that in order to discourage him from doing any such act in the future. Let us see, for the sake of clarity, what is the inquiry procedure. So sexual harassment complaint हुई, इसके बाद एक स्टेप और है जहाँ पर क्या होता है कि जब अक्यूज्ड व्यक्ति से जवाब मांगा जाता है उसके पहले एक मौका उसको दिया जाता है, अगर महिला चाहे तो अगर महिला से पूछा जाता है कि मैडम आप क्या कंसिलिएशन करना चाहेंगी, कंसिलिएशन इज़ अनदर वर्ड फॉर सेटलमेंट, तो अगर महिला कहती है कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है, मुझे बार बार मैसेज करता है, तंग करता है, कॉफ़ी के लिए डिनर के लिए पूछता है, इसको मैंने 10 बार मना करा है, इसको समझ नहीं आ रही, हो सकता है अब मैंने ये कंप्लेंट फाइल कर दी हो तो उसको समझ आ जाए कि भाई आई एम सीरियस अबाउट सेइंग नो, मेरी ना में हाँ शामिल नहीं है, जस्ट लाइक ओल्ड मूवीज़ दैट यूज्ड टू से कि महिलाओं की तो ना में भी हाँ है, तो ऐसी बात नहीं है, मेरी ना का मतलब फॉर मी नो मीन्स नो, and he has to understand this, and if he's ready to stop his behavior then I have no problem, I will end my complaint right here. But this conciliation can only be done if the woman is agreeable to it. The man cannot force the woman to settle the matter. So before he gives the reply, once the complaint has been forwarded to him, before he has given his reply, we have to ask the woman if she is ready to conciliate or to settle. If she says yes, then we speak to the guy. If he also is agreeable at the terms of the woman to settle the matter, then the complaint gets closed there. No further inquiry, no further reply to take place. If, however, the woman is not ready to conciliate or the man is not ready to conciliate at the terms that have been suggested by the woman, then we go ahead by the inquiry. Then the findings would come. They are presented to the management. Appropriate disciplinary action takes place. If it turns out, देखिए inquiry में ज़रूरी ये नहीं है कि कंप्लेंट सच्ची थी, अक्यूज ने ऐसा किया था या नहीं किया था, कई बार ऐसा भी निष्कर्ष निकलता है कि महिला ने किसी बदला लेने की भावना से या फॉर वट एवर रीज़न एक झूठी कंप्लेंट फाइल करी है पुरुष को बदनाम करने के लिए. सो इफ इट टर्न्स आउट टू बी दैट, देन अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द फीमेल एज वेल. देन so if the written complaint has to be filed, like I said, within 90 days, 3 months, then there is a further extension of 3 more months. All parties will be interviewed on record. Documentary evidence जो है उनका record पे आएगा. Then inquiry has to be completed within a time period of 90 days. IC report to be issued within 10 days from the completion of the inquiry, and management to act on the IC report within 60 days. एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिस बात पे कई बार जो आईसी की प्रोसीडिंग्स हैं वो फेल हो जाती हैं, वो ये है कि जो ये आईसी की रिपोर्ट आई, इंक्वायरी ख़त्म हुई और आईसी रिपोर्ट जो 10 दिन के अंदर अंदर इशू करनी थी, इस रिपोर्ट का जो कॉपी है वो कंप्लेनेंट वुमन को और अक्यूज व्यक्ति को प्रदान ही नहीं की गई. उन्हें पता ही नहीं चला कि किस ग्राउंड पे उनकी कंप्लेंट खारिज हुई है या अलाउ हुई है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आईसी अपनी रिपोर्ट निकालती है तो उसकी कॉपी जो भी कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज व्यक्ति है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी कॉपी सर्व की जाए. देन अगेन वी आर कमिंग, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू दिस, इट इज़ अ रिपीट. Okay, another video, a very good one. I keep showing all these videos so that you guys have an idea as to, sometimes actions speak louder than words. So let's see this video. अभिजू जी सर, अपने मर्डर को ना सर जी मीनाक्षी मैडम शर्मा. हाँ सर. अरे वो अग्रवाल प्रेशर का क्या हुआ? सर मैंने कल आपको फाइल दी तो थी. अच्छा, तो देखो यही रखी होगी. नहीं सर, ठीक है.
सर ये क्या लगा कहीं तुम बैंक जा रही हो? सर ये जो रिन्यूअल पेपर्स हैं इसमें दोनों पार्टनर्स के नाम हैं और नीचे सिग्नेचर्स भी हैं। ये सतीश अग्रवाल, ये सुधांशु ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अप्रूवल और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर्स। सर प्रॉब्लम हो रही है कि सतीश अग्रवाल अभी साइन करने से क्या हुआ सर? क्या आप कुछ देख रहे हैं? मतलब? मेरे बूब्स देख रहे हैं? अरे तो देखिए ना अच्छे से, ये देखिए। अरे बनकर अरे नहीं सच में सर, वैसे भी आप आधे टाइम तो मुझे देखने के लिए ही बुलाते हैं, तो एक बार अच्छे से देख कर ये बहुत पछताएगी तू। अरे सर सीरियसली, अच्छा मैं ये उतार दूँ है ना? अरे देखिए मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है, सेम ही होता है सबका। हाँ बस साइज थोड़ा ऊपर नीचे होता है बस। वैसे भाभी जी का क्या साइज होगा? 34 ना या 36? आपको तो पता ही होगा सर। सॉरी प्लीज मैडम। नहीं माना मेरी स्किन थोड़ी मुलायम है, लेकिन मलाई थोड़ी ना है सर कि जब आपका मन चाहा आपने चम्मच डुबाया और चाट लिया। अरे शर्मा जी तो शर्मा गए। सर आपके डर से तो मैंने स्लीवलेस पहनना भी छोड़ दिया। So, like the video suggests that, okay, in this particular video, the woman had the guts, I would say, or the strength to maybe answer back, maybe out of the sheer frustration of encountering this kind of a behavior from a senior for so long. But not every woman would muster the guts to do the same. So that is categorically the reason why this act has come into being, so that a platform is given to all such women so that they can voice their complaints and ensure that they have a safe working environment at their own workplace. Now, in order to ensure that such safe working environment is there, is it not the duty of the employer? Well, why are we having this awareness session at the instance of the employer? And charity always begins at home. So any kind of change you want to make in this society would categorically have to come from the workplace. So what are the duties of an employer? To provide a safe working environment for all the women employees, draft and disseminate an organizational policy against sexual harassment of women at workplace. So all organizations have now started making a sexual harassment policy for their workplace, and they have categorically included it into their service rules that sexual harassment policy will not be, sexual harassment will not be tolerated at this workplace. Even here today, when I was coming to this particular organization, I noticed certain posters that were placed at conspicuous places saying that women are respected and no sexual harassment will be tolerated, which is a good thing. Then formulate an IC if the organization has 10 or more employees, display the consequences of sexual harassment and the details of IC in any conspicuous place. I said the Supreme Court has also said this in the judgment that has been passed a couple of months back, that it has to be displayed that yes, this organization does not only have an IC, but you also have to give the details of the IC, what are the members, how can they be contacted, because just telling everybody कि हाँ भाई हमारे पास IC is not enough. People have to know कि कौन सी IC है, उसमें कौन कौन है, क्या वो ठीक तरीके से बनी हुई है, अगर है भी और हाँ भाई हमारे पास कंप्लेंट है तो हम कैसे उस IC तक पहुँचें, कहाँ खोजें उस IC को. तो अगर वो हमारे पास उसका नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी तो एटलीस्ट हम अपनी कंप्लेंट को अपने घर की सुरक्षा से या अपने क्यूबिकल की या अपने डेस्क से बैठकर हम वो मेल कर सकते हैं. हमें कंफर्टेबल नहीं लगता कि हम जाके वो डब्बा वहाँ पे रखा हुआ है वहाँ जाके सबके सामने एक चिट्ठी डालें उसमें ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए कि हाँ भाई इसने कोई कंप्लेंट फाइल करी है. देन
yes, it is the duty of an employer to assist to the best of his capability any woman who might be facing sexual harassment in the workplace. अगर आज वो महिला कहती है कि भाई आईसी में कंप्लेंट करके मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ये जो अग्रेसर है ये इस वर्कप्लेस के बाहर भी जाता है, मुझे फॉलो करता है, मेरे घर के बाहर खड़ा मिला था मुझे कल, तो उस एरिया में आप कैसे मेरी मदद करोगे, मैं पुलिस के पास भी कंप्लेंट फाइल करना चाहती हूँ. तो ऑल दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन शुड बी given by the employer to the aggrieved woman. Then forward an employee sexual harassment complaint to the police. Like I said, अगर वो चाहती है कि पुलिस को भी वो इन्वॉल्व करे, अगर उसको लगता है कि वर्क प्लेस के बाहर भी वो अग्रेसर उसका पीछा कर रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा है, घर पे जाता है तो फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, तो उस केस में पूरा सपोर्ट एम्प्लॉयर देगा. व्हाट आर द पेनल्टीज? अब हमने ये सब तो बता दिया कि भाई एम्प्लॉयर को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. अगर वो नहीं करता है, मान लीजिए हो सकता है उसे पता ही ना हो, पहली बात तो हमें मानकर चलना पड़ेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. अब आज आप जाकर किसी को मार तो नहीं सकते ना कि भाई हमें तो 302 के बारे में पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था किसी को मर्डर कर दो तो पनिशमेंट हो जाती है, हमने तो कर दिया, हमारा मन करा. सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. आज आप ये कहकर एज एन एम्प्लॉयर नहीं बच सकते कि भाई मुझे नहीं पता था ऐसी कोई आईसी बननी है. So it is your duty to know what the law of the land is, and that law of the land says that non-compliance might result in the monetary penalties for an employer. तो 50,000 तक की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है अगर आपने कंप्लायंस नहीं करी है. उस कंप्लायंस में क्या क्या होता है? एज एन आईसी मेंबर यू शुड नो, प्रॉपर तरीके से आईसी बनी हो, एनुअल रिपोर्ट जो कि साल के अंत में जाती है वो जाए, ट्रेनिंग सेशंस हों, क्वार्टरली आईसी की मीटिंग हो, और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सही तरीके से वो कंप्लेंट हैंडल हो. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले ब्रीच पे अप टू 50,000 का फाइन, और सब्सिक्वेंट ब्रीचेस पे हो सकता है कि जो भी लाइसेंस आपको अपने बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड हो वो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए. डैमेजेस जो कि आपकी रेपुटेशन है, अगर आप बार बार ऐसे ब्रीच करते हैं तो आपकी डैमेजेस हों, आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है. लोग कहेंगे कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा पीनलाइज ही होती रहती है, प्रॉपर जो कंप्लायंस हैं ये लोग वो नहीं करते हैं. सेक्शन 14 जो कि पॉश एक्ट का है, देखिए अब उस सवाल पे आते हैं जब पुरुष कहते हैं कि भाई हम क्यों ये ट्रेनिंग झेलें, ये इतनी बोरिंग ट्रेनिंग है, हमारे इसमें क्या फ़ायदा है, आप तो सिर्फ लेडीज़ की बात कर रहे हैं. सो सेक्शन 14 इज़ फॉर ऑल द मैन आउट देयर हु वुड टुमारो हु माइट नीड टू टेक द डिफेंस कि भाई ये कंप्लेंट झूठी है. इस केस में सो द एक्शन रिकमेंडेड अगेंस्ट द अक्यूज. तो अगर एक महिला कहती है भाई इस आदमी को, इसने मेरे साथ ये किया, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस किया जाए, निकाला जाए, रिमूवल ऑफ सर्विस, तो जो जो वो अलेज कर रही है एंड डिपेंडिंग अपॉन उसने कितनी बड़ी चीज़ें अलेज करी हैं उसी के मुताबिक जो पनिशमेंट अगर उसकी झूठी कंप्लेंट निकली उसको भी मिलेगी, जो कि इंक्लूड करता है सस्पेंशन या इवन डिसमिसल, वार्निंग, रेप्रिमांड, डिमोशन, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र. तो सारी चीज़ें जो एक पुरुष को खतरा है एक कंप्लेंट से, अगर वो कंप्लेंट झूठी पाई गई तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एलिगेशंस दैट शी हैज़ पुट रेज्ड अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन, शी विल ऑल्सो हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज इक्वली. एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर फॉर वट एवर रीज़न एक महिला अपनी कंप्लेंट को प्रूव नहीं कर पा रही है, उसने सेक्शुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी. अब जाहिर तौर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट बंद कमरों में होती है, अंधेरे कोनों में होती है, कोई बीच बाजार में खड़ा होकर तो सेक्शुअल हैरेसमेंट करेगा नहीं. उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, तो वो तिनका बाहर लटका के तो घूमेगा नहीं. वो कोशिश करेगा कि ऐसी जगह वो हैरेसमेंट करे जहाँ कोई विटनेस ना हो. तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये हैरेसमेंट का सिलसिला, कंप्लेंटबाजी का सिलसिला होता है, दिस जनरली बिकम्स यू नो इन द नेचर ऑफ ही सेज वर्सेस शी सेज. तो ये कह रही है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है इसने करा, वो कह रहा है मैंने नहीं करा, एंड देयर इज़ नो विटनेस, नो प्रूफ, क्योंकि उस एरिया में तो सीसीटीवी भी नहीं था, तो हम कैसे पता लगाएं. सो द मियर फैक्ट दैट द वुमन इज़ अनेबल टू सब्सटैंशिएट हर कंप्लेंट और शी इज़ नॉट एबल टू प्रूव दैट दिस हैज़ हैपेंड टू हर, दिस डज नॉट मीन दैट द सेक्शुअल हैरेसमेंट डिड नॉट टेक प्लेस. अब ऐसी स्थिति में बहुत मैक्सिमम जो होता है ना वो यही होता है. ऐसी स्थिति में आईसी क्या करे भाई? हमारे सामने जब ऐसी स्थिति आती है, जब हमें एज एन आईसी मेंबर भी ये समझ नहीं आता है कि ये सच बोल रही है या झूठ, या ये पुरुष सच बोल रहा है तो झूठ, तो हम ऐसे केस में यही कहते हैं
कि द कंप्लेंट कुड नॉट बी सब्सटैंशिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ये नहीं कहते कि भाई ये महिला झूठ बोल रही है क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास रिजल्ट होता है या जो सोल्यूशन हम देते हैं वो ये होता है कि भाई इन दोनों का जो प्लेस ऑफ वर्क है वो अलग अलग कर दो, किसी एक जने का या तो ट्रांसफ़र कर दो या इनके डिपार्टमेंट्स चेंज कर दो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि ये आमना सामना इनका हो ही ना। सो यू रिमूव देम फ्रॉम ईच अदर्स कंपनी। दैट इज़ ऑल दैट वी कैन डू बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रूव एनीथिंग। और अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं एज अ मेल, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसने झूठी कंप्लेंट करी है, तो वो जो उसका इंटेंशन है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों ही वो झूठी कंप्लेंट करेगी। मेलिशियस इंटेंट, क्या उसको फ़ायदा होता आपको बदनाम करके या आपकी झूठी कंप्लेंट करके, ये प्रॉपर तरीके से बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट, इट penalizes the complainant if the complaint is deemed to be false with malicious intent or if false or misleading documents or evidence are produced. So the punishments for false complaint would be false complainant's promotion will be halted, any raise in her salary shall be postponed or resigned altogether, false complainant will be fired from their jobs in significant circumstances if proven guilty. How do we ensure now? One of the biggest ask of the act, one of the biggest thing that the act categorically states कि भाई ये तो करना ही करना है, इसमें कोई compromise नहीं है, वो ये है कि ये जो सारी proceedings including the complaint and the name of the complainant as well as the aggressor, all this will be kept confidential. ऐसा नहीं है कि complaint हुई है, अभी तक कुछ prove नहीं हुआ है इसीलिए confidential रख रहे हैं। अगर प्रूव हो भी जाए कि इस बंदे ने इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, उसके बाद भी वो सारी प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, उनको आप पब्लिक नहीं करेंगे। IC members can sign a non-disclosure agreement in order to ensure that yes, they will not disclose anything. Restrict the flow of information on a need-to-know basis. Include the clause of confidentiality in the POSH policy. तो जब आप POSH की अवेयरनेस देते हैं उस टाइम आप सबको ये बताएंगे। और कई ऑर्गेनाइजेशंस तो अब इसको ऑफर लेटर में भी इंक्लूड करने लगी है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को, तो उससे इंश्योर हो जाता है। कल को आप ये कह नहीं सकते कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब किसी को बताना नहीं है, हमने तो अपनी वो डिनर टेबल पे सबको डिस्क्लोज कर दिया, लंच में आप बैठ रहे थे कुछ तो डिस्कस करते 1 घंटा में तो पूरी कहानी सुना दी। सो दैट अगेन, ignorance of law is no excuse. You can be penalized under this particular section. How do you ensure that confidentiality is maintained? By creating an awareness of the consequences of breach of confidentiality. वही सारे actions जो कि एक accused या एक झूठी कंप्लेंट फाइल करने वाली महिला के अगेंस्ट लिए जा सकते थे, वही सारे एक्शंस आपके खिलाफ भी लिए जा सकते हैं if it turns out that you have breached the confidentiality of the proceedings. So the POSH Act has introduced confidentiality clauses to ensure that no victim of sexual harassment bargains for their privacy to receive justice. मतलब अगर मैं आज एक किसी के खिलाफ एक कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के कर पाई हूँ क्योंकि अब मुझसे वो सहन ही नहीं हो रहा है उसका सेक्सुअल हरासमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे में ढिंडोरा पीट देंगे कि भाई इसने तो कंप्लेंट फाइल करी थी, पता है तुम्हें इसके साथ ये हो रहा था। Because you know, how many times will I explain the same thing to everyone? I don't want to talk about it. It is a bad chapter in my life. I would rather forget about it. And even if not forget, then I will not give you the right to discuss it with me. I don't know why you even know about it. So that is the intention behind keeping this confidentiality clause. Section 17 of the Act states that if a person breaches the confidentiality obligations during handling a complaint, conducting an inquiry, making recommendations or taking action under the statute, he or she shall be punished under the organization's service rules applicable to that person in the absence of such rules with a fine of rupees 5,000. So it is of utmost importance, especially to the IC members, that see, you people have the responsibility of maintaining the environment in your organization. You are the ones who will be acting as a judge in case a complaint is filed in your IC. So it is of utmost importance that you, being the IC members, know the obligation that you have on your shoulders. That is not only a moral obligation but also a legal obligation that you have, and that is that the confidentiality of these proceedings and the name of the witnesses,
the outcome of the proceedings, what is the report all about, भैया कितने में settlement हुआ, क्या हुआ, उसने कैसे sorry बुलवाई, क्या उस आदमी ने ऐसा करा था, क्या ये औरत ही झूठी है, XYZ, whatever the case, you are not supposed to discuss it or even give it in writing to anyone. Another video to get some clarity on the matter. Okay, so this video is in Bengali, so I would request all of you to look at the subtitles. সিগনেচার পরে হবে, আগে বলেন আজকে অফিসে পরে Signature, please. তুমি কিন্তু চাইলে খুব সহজেই কমপ্লেন করতে পারো। চাটা কিন্তু অতটাও খারাপ হয়নি, যাই কথা বলছি, শুধু শুধু কথা বাদে ঝামেলা হবে, ওটা আমি কিনা কি বিপদে পড়ি। এই আজকাল স্যানিটাইজার তাহলে পাবলিক এগেইনস্টে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ আনতে হচ্ছে, তাহলে খুব সিরিয়াস। এত বড় অপমান কে অভিযোগ করেছে আমার বিরুদ্ধে? দেখি তো সাহস থাকলে দেখি। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ না করলে আমরাও সমান অপরাধী, সহকর্মী, বন্ধু বা সহযাত্রী, আপনি যেই হন না কেন, আপনার সোচ্চার প্রতিবাদ থামিয়ে দিতে পারে নারীর প্রতি অন্যায়। নীরব না থেকে পাশে দাঁড়ান। So a classic example of today, if you do not speak against injustice, tomorrow it shall be you against whom injustice is done. Keeping this in mind, we must ensure to get over the mentality of कि हमें किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए. Of course टांग अड़ानी चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है कि आप ही का जो भी है, you know. So today, if you do not interfere in any kind of injustice that is being meted out to the other person, tomorrow it will be you standing at her spot. So if you are quiet in the light of injustice being done in front of you, then you are an equal participant in that injustice. So POSH Act 2013, one of the, apart from the complaint box that is there in your own organization, or the email ID of the POSH society or the POSH committee that has been given to you, apart from that, the government of India has come out with a very good initiative of the She Box portal, which offers the facility of making the online complaints of sexual harassment at the workplace to all women employees in the country, including government and private employees. So what happens here, it's sexual harassment e-complaint box. If you type it out on Google, you will be able to have access to it. All you need to do is fill in your organization, and a drop down list will open, and the job of the She Box is to give your complaint or send it ahead to the through the due channels to the right place, and then they would also seek a feedback as to whether the complaint has been taken up or not. So in the last 2 years, only 513 complaints have been filed in the She Box, which does not go to say that
513 इंसिडेंट्स ही हुए होंगे। मे बी इतने ही लोग थे जिनको शी बॉक्स के बारे में पता चला या जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल करी। 203 केसेस रिजॉल्व हुए हैं। आउट ऑफ दीज 203 केसेस had been disposed of so far as per the Ministry of Women and Child Development. 9 states and UTs with 0 complaints. So UTs like Daman and Diu, Dadar, Nagar Haveli, Goa, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Mizoram, Manipur, Nagaland and Sikkim were 0 complaints were registered. So we have to understand, अगर किसी स्टेट से 0 कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सेक्शुअल हैरेसमेंट है ही नहीं। हो सकता है रिपोर्टिंग नहीं हो रही हो। So let's look at another video. हाल ही में स्मिता द्वारा अपने सुपरवाइजर पीयूष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत पर आयोजित इंटरनल कमेटी आईसी में सुनवाई की एक झलक। हम सुश्री स्मिता द्वारा उसके सुपरवाइजर पीयूष के खिलाफ दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। कार्यरत दिखाता है कि शिकायतकर्ता सुश्री स्मिता ने लिखित शिकायत की है और साक्ष्य के रूप में अपने और प्रतिवादी के बीच व्हाट्सएप बातचीत की लिखित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। सुनवाई शुरू करने के लिए सुश्री स्मिता से मेरा अनुरोध है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियों के साथ उस बातचीत के बारे में बताएं जो उनके और श्री पीयूष के बीच हुई थी। मैडम, इस शख्स ने बार बार मुझे उसके साथ निजी रिश्ता बनाने के लिए कहा। जब मैंने इनकार किया तो इसने मेरी नौकरी को खत्म करने की धमकी दी। जब मैंने एचआर हेड को शिकायत की तो वो बीच में आए और उनके कहने पर इस शख्स ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं तो बस इस सब से दूर हटना चाहती थी। इतना ही काफ़ी नहीं था, इसने बिना किसी वजह के मुझ पर जोर से चिल्लाकर मेरे सारे कुलीग्स के सामने मेरा अपमान किया। फिर मेरे पास इस कंपनी में इस्तीफा देने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए प्लीज़ मेरे स्वाभिमान को और ज़्यादा ठेस मत पहुंचाइए। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। शांत हो जाओ स्मिता। अब हम श्री पीयूष से जानना चाहेंगे कि क्या वो स्मिता की बात से सहमत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ गलतफहमी हो रही है। किसी का नुकसान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने सभी कॉलीग्स के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, न कि कुछ और। मैं शादीशुदा इंसान हूँ और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। भला मैं ऐसे मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? मैंने स्मिता को मेरे साथ कोई यौन या रूमानी रिश्ता बनाने का इशारा कभी नहीं किया। अगर उसने मेरे बर्ताव का ये मतलब निकाला है तो ये मेरी गलती कैसे हुई? कहानी के बीच में आने के लिए ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ आवाज उठाकर स्मिता ने ठीक काम किया? क्या इस हालात से उबरने के लिए स्मिता के पास दो ही रास्ते हैं, नौकरी छोड़ देना या उत्पीड़न को बर्दाश्त करना? क्या दोस्ताना बर्ताव यौन उत्पीड़न के लिए एक वजह बन सकता है? क्या पीयूष ऐसे होने से रोक सकता था? देवियों, So these are the various questions that are there before us. क्या अगर किसी महिला की sexual harassment होती है तो she has only two options, being कि क्या वो ये सहन ही करती रहे या इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए, कैटेगोरिकली आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज आप एक वर्क प्लेस छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर आपका सेक्शुअल हैरेसमेंट हो रहा है, आपको लगता है चलो यार इसको छोड़ो कहीं और ज्वाइन करते हैं, ये नहीं हम झेल पा रहे, तो क्या ही ये गारंटी है कि उस दूसरी जगह आप जाएंगे वहाँ पर सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई और नहीं उठाएगा। अपने जैसे कहते हैं ना, यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, तो अपनी इज़्ज़त की और अपनी राइट्स की सुरक्षा भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। एंड यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी हैं टाइम पर होना, क्योंकि आप लोग आईसी मेंबर्स हैं। लाइक आई सेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू टू टेक केयर ऑफ द women of the organization and also to take care of the men who might be facing false or malicious charges of sexual harassment against them, because it's an equally big affront to their own character and their reputation in the society. So you have to understand, इस समय शायद 100 के करीब लोग ऑल आईसी मेंबर्स
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एज एन आईसी मेंबर भी ये केस किसी और आईसी मेंबर से डिस्कस करते हैं तो वो भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ही है, क्योंकि आईसी मेंबर होना ये राइट आपको नहीं देता कि ये केसेस के आप डिस्कशंस करें। हो सकता है आप उस पर्टिकुलर केस में आईसी मेंबर ना हो, और अगर आप किसी और केस में आईसी मेंबर हैं और आप सिर्फ ये सोच के डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई मैं उसकी राय ले रहा हूँ, वो भी आईसी मेंबर है, शायद वो मुझे गाइड कर पाए, तो आपको 10 बार 50 बार 2000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीच तो हो ही रहा है। चाहे आप अपने आप को ये जस्टिफाई कर लें कि आईसी मेंबर से आप अगर आपको राय लेनी है तो आप एक्सटर्नल मेंबर से राय लें, वो एक अनबायस्ड पर्सन है। आप अपनी नॉलेज खुद बढ़ाएं, थोड़ा सा स्टडी करिए, लिटरेचर देखिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझिए ये भी है कि काफ़ी हद तक जो कंप्लेंट्स आएंगी आपके पास, हो सकता है वो अंडर 18 की कंप्लेंट्स आएँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जो 18 साल का नहीं हुआ है। ऐसे में पॉस्को एक्ट भी अट्रैक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी एक एडेड ड्यूटी और बन जाती है, क्योंकि पॉक्सो ये कहता है कि जैसे ही आपको पता लगा कि किसी चाइल्ड की, जिसको डिफाइन किया हुआ है ऐसे व्यक्ति से जो कि 18 साल का भी नहीं हुआ है, चाहे वो 17 साल 11 महीने 25 दिन का है, वो चाइल्ड ही कहलाएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो आपके ऊपर एक मैंडेट है कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर नहीं करते हैं तो आप भी एक ऑफेंस कर रहे हैं अंडर पॉक्सो। सो देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन यू एज IC members that you have to actually be very very careful when you deal with these cases. Now I will take a moment now to ask all of you if there is any clarity, any question that you might have. Let's have an open question and answer session for the sake of resolution of all the doubts that you might have in your mind or any clarity that you people might need. Anyone at all? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। इनफैक्ट इट इज़ बेटर कि आप अनम्यूट करके पूछें ताकि मैं सुन सकूं आपको। पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा इतना लंबा लंबा। Who would be that external member? पूनम जी आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। आई वुड लाइक टू नो योर क्वेश्चन इन डिटेल। एक्सटर्नल मेंबर मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी NGO से रिलेटेड है, जो कि महिला की फील्ड में काम करता हो, या कोई एडवोकेट जो विमेन रिलेटेड इश्यूज की जानकारी रखता हो। यस, आई थिंक तन्मय कुमार वांट्स टू आस्क समथिंग। यस तन्मय जी। मैम आई हैव वन क्वेश्चन मैम। या प्लीज गो अहेड। एक्चुअली मैम जैसे हमारे स्टूडेंट ओरिएंटेड भी है यहाँ पर, तो क्या गर्ल फीमेल जो अपनी स्टूडेंट्स जो हैं क्या वो भी इस कंप्लेंट्स के अंदर आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के अगेंस्ट बिल्कुल आती हैं। देखिए जब ये एक्ट आया ही था पिक्चर में, तो ये माना जाता था कि ये एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही कर सकता है। उस टाइम ना काफ़ी सारी ये क्वेश्चंस आए थे कि क्या स्कूल इस एक्ट के अंडर कवर्ड होंगे, क्या हॉस्पिटल्स इस एक्ट के अंडर कवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है, अगर उसके साथ कोई डॉक्टर या कोई नर्स या वार्ड बॉय कोई अभद्र व्यवहार करता है, तो क्या वो पेशेंट पॉश में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इस चीज़ को जजमेंट्स के थ्रू क्लियर करा गया कि स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी पॉश में कवर होते हैं। तो यस, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है और अगर उसकी कोई इस तरह की शिकायत है, क्वा हर टीचर और टू दैट एक्सटेंट एनीबडी एल्स फ्रॉम द वर्क प्लेस, शी कैन वेरी वेल बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। वन मोर थिंग मैम, Yes. लेट्स सपोज हमारे पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स आर फीमेल, ओके, लेट्स सपोज वो कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं किसी भी सिनेरियो में, हो सकता है उनको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से, तो
मतलब क्या उनके ऊपर भी हम एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। तन्मय जी, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखते हैं, क्योंकि जो फील्ड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आप लोग फेस कर रहे हैं, और मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये डिलेमा रहता होगा कि हम ये क्लैरिटी कहाँ से लें। तो अगर एक सेट ऑफ पेरेंट्स आते हैं और काउंसलर, फीमेल काउंसलर है, वो भी एम्प्लॉई हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उसके साथ कोई इस तरह का व्यवहार, देखिए हमारे को दो तरह के व्यवहार होते हैं। एक तो हो गया मिसकंडक्ट के, मतलब एक बदतमीजी का व्यवहार, इस बात उसमें कोई सेक्सुअल कॉनोटेशन नहीं है, तो वो व्यवहार हो गया मिसकंडक्ट के अंडर, वो एक दूसरी जगह जाएगा, HR डील करेगा उससे। बट अगर एक पेरेंट्स आते हैं कि अरे मैडम मज़ा आ गया आपसे बात करके, या आपसे तो हम बाहर भी मिलना चाहेंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, एज अ फादर समबडी सेज दिस, और एन एल्डर ब्रदर, और फॉर दैट मैटर सम अंकल, और हुएवर इट इज़, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा पॉश में इस कंप्लेंट को लाने के लिए कि क्या वो सेक्सुअल कॉनोटेशन है उस व्यवहार में। अगर सेक्सुअल कॉनोटेशन है तो वो ज़रूर कवर होगा पॉश में, क्योंकि वो फीमेल काउंसलर एक एम्प्लॉई है। जिस मैंने आपको बात करी थी होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, क्विट प्रो क्यो, और एक थर्ड पार्टी हैरेसमेंट, तो ये थर्ड पार्टी हैरेसमेंट में कवर होता है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट। यस, आई थिंक सबा खान। यस सबा जी, बताइए। तन्मय जी, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, मतलब डू यू नीड एनी अदर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, और इज इट क्लियर इनफ? मैम इसमें फिर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं? लेट्स सपोज कोई पेरेंट आता है, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, हमारे आगे इंसिडेंट हुआ था, बहुत पुरानी बात है। वो लेट्स सपोज सेंट्रल टीम से कुछ फोन से बात कर रहा है, जो हमारे टेलीकॉलर्स होते हैं, उनसे बात कर रहा है, उनसे उनको कुछ अलग कमिटमेंट मिला, ब्रांच पे आए, उनको यहाँ पे कुछ अलग सुनने मिला, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे, तो पता है हमें क्या बोलना है उनको। बिल्कुल। इन दैट केस नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, और फिर वो लेट्स सपोज सम अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा लैंग्वेज वर्ड यूज कर रहा है, तो उसने एडमिशन नहीं दिया हमारे पास फिलहाल। ठीक है, अब उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो उसके पास तो वो है नहीं, मैं बच्चा है, पर उसको डर नहीं उस चीज का, ठीक है, तो वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल। तो व्हाट एक्शंस वी कैन टेक अगेंस्ट दैट पर्सन? Again, a wonderful question and a very very practical thing that you have raised. आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक बार आई विल नॉट नेम द यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में एक और को स्टूडेंट था, मेल को स्टूडेंट के खिलाफ एक फीमेल को स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी। अब वो को स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी आना ही बंद कर दिया, उसने कहा भाई कर लो तुम्हें जो करना है, मैं तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। अब ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी की पॉश कमेटी ने वो कंप्लेंट ले रखी है और वो एक्स पार्टे हो जाती है, मतलब वो लड़का पार्टिसिपेट ही नहीं करता उसमें, तो ऐसे में आप उसके ऊपर किस तरह कंट्रोल करेंगे? उस यूनिवर्सिटी ने फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया स्टूडेंट को। तो एक तो आपके पास ये है कि पहली बात तो देखिए, अगर ये सेक्सुअल नेचर की कंप्लेंट या मिसबिहेवियर नहीं है तो ये पॉश में ना आके HR में आएगा। उस केस में आप ये एक तरीके से फ्लैग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम को कि भाई ये स्टूडेंट है, इसके जो घर वाले आते हैं या इसके केस में ये मिसकंडक्ट हुआ था, अगर तो वो सेक्सुअल नेचर का है तो उसको इस तरह आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर जिस महिला के खिलाफ, फीमेल कॉलीग के खिलाफ वो मिसकंडक्ट करा है उसके घर वालों ने, उस स्टूडेंट के या उस स्टूडेंट ने, तो अब ये उसका मन है, अगर वो पुलिस कंप्लेंट आगे करना चाहती है तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर है या जो मैनेजमेंट है वो उसको पूरा सपोर्ट देगी। अपनी तरफ से एज एन एम्प्लॉयर आपकी ड्यूटी यही बनती है। हाँ, नो, अभी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अब्यूज इट इज, डिपेंड्स। तो यही मैं आपसे कहती हूँ, एक इस तरह का देखिए, काफ़ी सारी महिलाएं क्या करेंगी कि वो उस पर्टिकुलर मिसकंडक्ट को पॉश में घुसाना चाहती हैं, क्योंकि पॉश में एक मैटर के कवर होते ही एक एक्स्ट्रा पावर फीमेल को मिल जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसको छुट्टी सैंक्शन हो सकती है 90 दिन की, जो कि काउंट नहीं होगी, पेड लीव, या वो ट्रांसफ़र करा सकती है सामने वाले का। अगर HR होता तो HR में ये कंप्लेंट ग्रीवियंस में डील हो रही होती, तो दोनों को एक बराबर मौका मिलता है। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी पॉश में एक एडेड बेनिफिट लेडीज़ को दिया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है IC के लिए ये देखना कि क्या ये कंप्लेंट वाकई सेक्सुअल हैरेसमेंट की है, या ये एक जनरल आपाधापी लड़ाई आपस में हुई और एक मिसकंडक्ट हुआ, क्या ये उसकी कंप्लेंट है या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की है। तो ये अंदाज़ा आपको
थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होंगे, तभी आप निकाल पाएंगे ये अंदाज़ा कि क्या वाकई इसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट, अनवेलकम सेक्शुअल कंडक्ट, आस्किंग सेक्सुअल फेवर्स, दिस एंड दैट करके क्या इसको हम पॉश की कंप्लेंट बनाएं या इसको HR में भेजें. यस, आई थिंक नाउ सबा जी आप बताएं अपना क्वेश्चन. जैसे अभी आपने बताया था कि आईसी मेंबर में 4 मेंबर. आई एम सॉरी, आप रिपीट करेंगे एक बार क्वेश्चन. अभी जैसे अभी जो सेंटेंस में आपने बताया था पहले कि आईसी जो मेंबर्स होते हैं वो 4 रहेंगे, कम से कम 4 रहेंगे. हाँ, कम से कम 4 रहेंगे. तो मैम जैसे मुझे पता है कि अभी सिर्फ मैं हूँ मतलब, और बाकी को मुझे नहीं पता. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बाकी 3 कौन है उनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कैसे. नहीं तो फिर इस चीज़ की क्लैरिटी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी कोई आईसी वैलिड नहीं मानी जाएगी जिसमें केवल एक आईसी मेंबर हो. कम से कम 4 मेंबर, जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर रैंकिंग की फीमेल, एक एक्सटर्नल मेंबर एंड 2 अदर एम्प्लॉयज़. 4 से आगे 40 आप कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, बट कम से कम 4 मेंबर्स होने होंगे, तभी वो आईसी है, वरना वो कुछ भी नहीं है. जैसे कि मान लें आप, अगर आप ट्रेन छूटती है आपकी, तो चाहे आप 1 मिनट लेट हो, चाहे आप 10 मिनट लेट हो, चाहे आप 10 दिन लेट हो, ट्रेन तो छूटी गई ना. तो इसीलिए अगर आपने आईसी ऐसी बना रखी है जिसमें 3 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 1 मेंबर है, तो वो आईसी नहीं है, फिर कंप्लायंस आपकी छूट गई है. कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए. तो मैम इसके बारे में किससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब पर्टिकुलर ऑफिस में किसी पर्टिकुलर पर्सन से कंफर्म करना पड़ेगा. भाई आपको अपॉइंट किसने करा एज एन आईसी मेंबर? मैनेजमेंट ने करा होगा ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो आप उन्हीं से जानकारी लें. हो सकता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, वरना मैं मान के चलती हूँ कि एक मेंबर की आईसी तो नहीं बनी होगी. आई एम श्योर ऑफ इट. मैम ये ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बनना है, तो ये हम आईसी कमेटी मेंबर फ्रॉम द ब्रांच है. अच्छा. ये ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट मैम एक्चुअली बहुत हर ब्रांच के लिए एक आईसी मेंबर को अपॉइंट किया गया. ऑल राइट, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल मेंबर मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ. तो वो मैम तो है ना यहाँ पर. तो ये अगर आप सभी लोगों को एक एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, वो एक अलग बात है. तो इस बात की जानकारी आई विल स्पीक टू द कंसर्न पर्सन, और वो इस बात की क्लैरिटी. ऐसे 2 मेंबर्स हैं हर सेंटर से, जितने भी हमारे विद्यापीठ हैं, उन सारे विद्यापीठ से 2 हैं. 2 एम्प्लॉइज फीमेल वहाँ पे है. हाँ, एटलीस्ट एक फीमेल एम्प्लॉई है हर सेंटर से. अच्छा. और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक एक्सटर्नल मेंबर कॉमन है टू एवरीवन. कॉमन है सबके लिए. ऑल राइट, कॉमन. ठीक है. तो फिर सबा जी, मैं तो इसमें आपका लैप्स कहूँगी, सभी को पता है. नो प्रॉब्लम, बताएं. और आईसी मेंबर के लिस्ट भी एचआर पॉलिसीज में हमारे दावे पे है कि कौन कौन से आईसी मेंबर, सारी डिटेल्स. बिल्कुल. सारी. So this Darwin information actually I am not privy to, because I am an external member. I am supposed to be unbiased. So Darwin box is something that is privy to only the employees of the office. So I would suggest all of you all to go through the contents once again, so that there is total clarity between everybody as to who exactly belongs to which IC and who all are the members. Yes, Sajid, Mr. Sajid Ansar, yes, please. साजिद जी पूछे, आपने हैंड रेज किया हुआ है. आई थिंक अनम्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम है. नहीं मैम, मेरा इशू था, हो गया था. अच्छा. साक्षी जी आई थिंक यस, क्या क्वेश्चन है आपका? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. मैं तो पहले साजिद जी प्रश्न कर लें या मैं पूछूं? साजिद जी आप बताइए. चलिए. मैम, जैसे हमें पता चल रहा है कि किसी फीमेल को हरास कोई लीड हो या फिर उसका कलीग कर रहा है, या हमें दिख रहा है, मगर वो फीमेल नहीं डर रही है, या फिर वो नहीं, उसके पास वो गट्स नहीं बना पा रही है कि वो आगे बोले, तो उस केस में क्या कोई आईसी मेंबर खुद इनिशिएट कर सकता है? सुओमोटो नहीं, सुओमोटो साजिद जी नहीं हो सकता. ये एक्ट बहुत क्लियर है इस बारे में कि दो ही केसेस हैं जब आप
उस महिला के बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हैं जब वो महिला खुद आपसे कहे कि भाई मुझ में हिम्मत नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, या मेरी इनकेपेसिटी है फिज़िकल या मेंटल, या तो ऐसे केस में उसका नियर एंड डियर, नेक्स्ट ऑफ किन, लीगल एयर, कोई भी उसके बिहाफ पे विद हर परमिशन, रिटन परमिशन उसके बिहाफ पे रिटन कंप्लेंट कर सकता है। बट आप किसी महिला के बिहाफ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते जब तक उस महिला की रजामंदी ना हो, और उसमें भी रजामंदी के बावजूद आप उसके बिहाफ पे कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे जब तक उसकी किसी तरीके की इनकेपेसिटी ना हो। तो ये कंप्लेंट एक ऐसी कंप्लेंट है जो उसको खुद ही करनी पड़ेगी, वो भी राइटिंग में अपना नाम और अग्रेसर का नाम डिस्क्लोज करके। या हाँ जी साक्षी जी, आप बताइए। आप Actually, I just want to ask कि see, we are the females and हमें समझ में आ जाता है we have a sixth sense कि किसकी नज़र कैसी है, किसकी नज़र कैसी नहीं है, isn't it? Yes. तो अगर हमें किसी की नज़र या किसी का क्लोज आना हमें सही नहीं लग रहा और हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थोड़ा सा भी उनका करीब आना, एकदम से लैपटॉप ले लेना या whatsoever, तो that comes under POSH policy, no? बिल्कुल 100% साक्षी जी, आपको याद होगा ड्यूरिंग द presentation or the awareness session, whatever it is that you want to call it, I said in this act it has been categorically made clear that it is the impact and not the intent that matters. So कल को अगर आपसे कोई, आपको पता है, like you said, and it is true, I am 100% sure and I'm with you on that, that every woman has been blessed with a sixth sense that tells her that this is a good touch and this is a bad touch. So if you feel that somebody has taken that laptop away from you in an improper manner and you will be able to know it for sure, then it is the impact of that act on you that matters and not his intention कि भाई मैडम गलती से हाथ लग गया था. That is not done and this act is very very clear on that. You can definitely raise this concern and you believe you me, when you raise it, the other person who has done it also knows the intention with which he has done it and he will be warned and he will be acting accordingly in the future. Thank you, ma'am. And one more question. Yes. That, see, we have two branches in Jaipur, and जैसे कि sir ने बोला, and I have gone through the POSH policy as well into the Raven. So हमारे दो जो हैं POSH members हैं, IC members. So if in future, जैसे आपने we are the IC members, if in future ऐसे मान लीजिए किसी IC member के साथ कोई चीज होती है, then दूसरी IC member will be going to take place. बिल्कुल. See, this is the beauty of these question and answer sessions because see, all these practical problems you people have gone through and I'm sure you must be thinking ये कहाँ से पूछें. तो अगर देखिए, आपने वो देखा है वो केसेस, आजकल तो हर केस ही न्यूज़पेपर में 3-4 पेजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भरे होते हैं. तो आपने देखा होगा कि फलाना जज ने अपने आप को रिक्यूज़ करा उस मैटर को सुनने से क्योंकि वो उससे कनेक्टेड हैं. तो अगर आपकी खुद की कंप्लेंट है या आप किसी कंप्लेंट में विटनेस हैं या बन सकते हैं और कंप्लेनेंट ने कहा है या अक्यूज़ ने आपको विटनेस बनाया है, तो आप फिर अपने आप को उस आईसी से रिक्यूज़ करेंगे और कोई और मेंबर आपकी जगह बैठेगा. यस, आई थिंक प्रीति जी आप बताएं एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अप मिस भावना. इवनिंग मैम. या गुड इवनिंग मैम. एक आईसी मेंबर के हिसाब से तो जैसे कि हम लोगों को ये चेकआउट करना होता है कि जैसे जिस फीमेल ने कंप्लेन आके यहाँ पे किया है, रेज किया, पहले तो वो बहुत श्योर थी, जानकारी थी, फिर हमारे पास कंप्लेन किया, उस वक्त हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है. वो तो हम समझ गए कि हम लोग को कंप्लेन रेज करना होता है, लेकिन तो कभी कभी स्टूडेंट के साथ भी, जैसे क्लास इंचार्ज है या कोई इंचार्ज है, उनके साथ भी अगर हम अभी कोई कंप्लेन नहीं आया लेकिन हम अगर कोई ऐसा बिहेवियर देख रहे हैं तो मेरे साथ सामने हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग कैसे, उस वक्त क्या करें कि कैसे उस चीज को आगे ना हो या उसको रोकने की कोशिश करें, इसके लिए हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं. आप आईसी मेंबर हैं और आप साथ के साथ फैकल्टी भी हैं जिसके सामने कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है, आपका कहने का मतलब ये? हम लोग स्टाफ में है, मैनेजमेंट में है, काउंसलिंग में है, तो वहाँ पे भी जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैसे मुझे लगता है कि ये आगे के लिए बड़ी हो सकती है, उसे हम लोगों को बढ़ने नहीं देना है, समय से पहले ही उसको निप इट इन द बड कैसे करें. बिल्कुल. देखिए, हमने इसमें आपने एक वीडियो देखा होगा जब वो अग्रेसर चीख रहा है कि किसने हिम्मत करी मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की, और सभी लोग खड़े हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा थॉट है आपका कि आपको दिख रहा है कि कुछ गलती हो रही है. इट्स लाइक वो लोग, पीपल का पेड़ नहीं बड़ा हो जाता उसके बाद वो कहते हैं हम इसे कैसे उखाड़ें.
तो जब वो बढ़ रहा होता है उसको तभी, मतलब पीपल का पेड़ शायद गलत एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी 2-3 दिन पहले सुना था किसी से, बट यू नो व्हाट आई मीन। अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है कि अभी ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी और ये कल को हमारे से सिमटाने में नहीं आएगी, तो आपका पूरा वेल विद इन योर राइट्स हैं, आप उस प्रॉब्लम को इफ नथिंग एल्स यू कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। एक रिटन कंप्लेंट आप उस पॉश एक्ट के बाहर भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सारी चीज़ें हमें पॉश में ही घुसानी है। अगर देखिए, क्योंकि पॉश में क्या कंस्ट्रेंट है सबसे बड़ा कि कब जो होता है कि क्लासेस चल रही हैं या टीचर फैकल्टी डाउट बता रहे हैं, एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बाद से लगता है कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा उस चीजों को अगर हम लोग स्टॉप करने की कोशिश करें तो फिर वो चीजें आगे बढ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कंसर्न्स आपको मैनेजमेंट से रेज करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट भी आई एम श्योर ये नहीं चाहती कि कल को ये बड़ी प्रॉब्लम्स आएँ। देखिए, जब भी कोई आईसी में एक कंप्लेंट आती है, बहुत सारे मैन आवर्स लगते हैं, चार पर्सनस उस आईसी में कम से कम होंगे, काफ़ी सारे मैन आवर्स लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, पेपरबाजी होती है, रिकॉर्ड बनते हैं, तो हर एक कोई चाहेगा, सभी के लिए बेनिफिशियल है कि कंप्लेंट्स का आने से पहले ही रेजोल्यूशन हो जाए। राइट, या भावना जी बताएं। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I had a question. Like, you said that there will be a 10 investigation. Once we intimate the accused person, so there will be a 10 investigation. So within that time period, both the party must come to the office as usual as they are coming. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिगेशन। सो कई बार ऐसा होता है कि एक इंटरिम प्रेयर या रिलीफ महिला मांगती है कि भाई ये जो नेचर ऑफ एलिगेशंस है मेरी इस तरह की हैं कि मैं आ ही नहीं सकती ऑफिस, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझ पे बहुत बड़ा मानसिक यातना है और मेरी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, या मुझे काफ़ी खतरा है। तो ऐसे केस में एक्ट ने ये प्रोविज़न बना रखे हैं कि उस लेडी को 90 दिन तक की छुट्टी सैंक्शन हो, या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स उन दोनों में से किसी एक का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे एक केस था, उसमें वर्क फ्रॉम होम कर दिया था उनका, मंडे वेंसडे फ्राइडे एक जने का वर्क फ्रॉम होम कर दिया था और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दूसरे जने का। तो इस तरीके से इंटरिम सॉर्ट ऑफ टिल द पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट, या जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये एक्शन भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कंप्लेनेंट ने क्या। The accused person, he can come as usual as he is doing. Yeah. If the complainant has no problems, then there is no problem at all. काम तो कंटिन्यू, ऐसा थोड़ी है कि कंप्लेंट हो गई तो सब लोग घर बैठ जाएंगे, उस दौरान काम चलता रहेगा। बट अगर कंप्लेनेंट ने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझ पे दबाव बना रहा है, या और भी ज़्यादा इसका हैरेसमेंट बढ़ गया है, तो ऐसे केस में वो ये रिक्वेस्ट कर सकती है, ये प्रेयर कर सकती है अपनी कंप्लेंट में कि भाई या तो इसका ट्रांसफ़र करो या मेरा करो, या हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम का दो, या मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी छुट्टी सैंक्शन करो। तो ये सारे प्रोविजंस उसके पास हैं। थैंक यू। थैंक यू। एंड आई थिंक श्वेत प्रकाश जी बताएं। मैम, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, like you said, confidentiality maintain करनी होती है, तो उसमें जैसे हमारे टेंडर पे अगर 2 IC members है and somebody comes to one of the IC members, so in that case whether we are supposed to tell that another IC member or not? See, आप दोनों ही IC कमेटी में हैं? Yes. ठीक है, तो अगर हम देखें कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तो इज़ ऑल्सो इट कम्स अंडर द राइट टू लाइफ प्रिवेसी, क्योंकि राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एसोसिएटेड विद द राइट टू प्रिवेसी। तो जब तक उस पर्सन ने, महिला ने अपनी कंप्लेंट आईसी में डाली नहीं है, तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दूसरे आईसी मेंबर से इस चीज़ को डिस्कस करें। वंस दैट कंप्लेंट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द आईसी कमिटी, उसके बाद तो आप दोनों ही आईसी मेंबर अगर उस सेम कमेटी के हैं फिर तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बट उस डिस्कशन में आपको ये इंश्योर करना है कि वो इस तरीके से डिस्कशन हो कि वो पब्लिक ना बने। ऐसा ना हो कि आप डार्विन बॉक्स पे डिस्कस कर रहे हैं और वो सबके लिए ओपन है उस टाइम, तो थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। Again, ma'am, do you have any forum in that, like
quorum of at least 3 people, at least 3, कम से कम 3 लोग होने चाहिए for any proceeding to move ahead. Okay, so in case if there are like 2 person are IC में अगर उस दिन 2 लोग हैं तब वो आगे proceeding नहीं जा सकती है. IC we have 4 people, like No, at least quorum का मतलब ये हुआ, देखिए श्वेत जी, के कम से कम 4 लोगों की IC बनेगी. बट अगर उस दिन IC की प्रोसीडिंग होनी है और किसी कारणवश सिर्फ 3 ही IC मेंबर्स आ पाए तो प्रोसीडिंग आगे चल सकती है. बट अगर 2 हों या 1 हो तो नहीं. कोरम मतलब कम से कम 3 लोग बैठेंगे तभी IC आगे बढ़ पाएगी. एंड अगेन मैम जो कॉन्फिडेंशियलिटी पे है, एंड लेट्स सपोज एक केस हमारे यहाँ आया था, उसमें जो एलिगेशंस लगे थे उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, लाइक उनके नाम मेंशन किए गए थे कि ये इंसिडेंट इनके प्रेजेंस में हुआ था. तो वो विटनेसेस हैं. हाँ, मतलब विटनेस अगर अक्यूज ने भी लोगों के नाम मेंशन किए और विक्टिम ने भी किए, तो उन लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? नहीं, उन लोगों तो आप अगर वो लोग एज अ विटनेस बुलाना चाह रहे हैं तो वो अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उनके नाम देंगे. ऐसे में जितने विटनेसेस आए उन सब से आपको कॉन्फिडेंशियल वो नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म साइन कराना पड़ेगा. Yes, I think Manish ji was the first one, and then we'll take up Miss Pinky. बताइए मनीष जी. हाँ, हेलो मैम. हाँ जी, हेलो मैम. एक कंडीशन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. बताइए बताइए बताइए. मैम, जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी मेरे मान लेते हैं 2 पेरेंट्स है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है. फीमेल को उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगा. इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की, ठीक है, और मैनेजर को, बिजनेस हेड को, सभी को. तो कुछ कारणवश वो जो फीमेल मेल बंदे हैं वो मैनेजर और बिजनेस हेड के फ्रेंड नहीं करते हैं, मतलब फ्रेंड होते हैं. तो उनको इस कंडीशन में बचा लिया जाता है, बात को दबा दिया जाता है. तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं? ये तो डिपेंड करता है ना कि उनको क्या नहीं अच्छा लगा. क्या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट है या नहीं है? तो फिर उन्होंने डिस्कस कराई क्यों HR से और हेड से और मैनेजर से? उनको पॉश से डिस्कस करना चाहिए था. फिर तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है. सपोज उसको पता नहीं होगा पॉश के बारे में. तो ऐसे में HR की तो ड्यूटी बनती है. अगर ऐसे में अगर उस कंप्लेनेंट को नहीं पता था तो HR को उसकी कंप्लेंट में पढ़ने से पहले उसको सबसे पहले पॉश की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए था. सपोज ये बात HR तक भी नहीं गया, मैनेजर, बिजनेस हेड वगैरह सब आपस में सेलेक्ट हुए और ठीक है, थोड़ा डरा धमका के या प्यार से फीमेल कैंडिडेट को प्यार से समझा दिया गया या डरा धमका के समझा दिया गया, देन फीमेल कैंडिडेट को फिर डार्विन बॉक्स पे पूरी रिसर्च करनी चाहिए थी. क्योंकि देखिए इसीलिए तो ये अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं ना मनीष जी. ये वही वाली बात हुई कि भाई हमारे किसी घर वाले की हत्या कर दी गई है बट हमें ये नहीं पता था कि पुलिस के पास जाना है. तो फिर तो पुलिस घर आके चेक नहीं करेगी ना. या पिंकी आप बताएं. हेलो मैम. हेलो, गुड इवनिंग. मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अगर हमारे सेंटर पे कोई कंप्लेन नहीं आती है तो बहुत खुश हो जाइए आप. बहुत अच्छी चीज है ना फिर ये तो. नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये तो. या तो कंप्लेंट आई नहीं रही है या सब पिंकी जी से बहुत डर रहे हैं कि हम तो कंप्लेंट लेके जाएंगे हमें घेर लेंगी. हाँ जी हाँ जी, बस ये पूछना था मुझे. और दूसरा मेंबर हमारे यहाँ से कौन है मैम? दूसरा मेंबर ये आपको पता करना पड़ेगा पिंकी जी, फ्रॉम योर HR डिपार्टमेंट के IC. I think everybody should be given a list of the IC members because they are not aware. थोड़ा सा आप अपने पोर्टल पे चेक करें. मुझे ये न्यूज़ मिली है बट आई हैव स्पोकन टू द कंसर्न पर्सन, दे विल अपडेट यू. यस मिस शालू. हाँ सॉरी, बताइए बताइए. जो भी कंप्लेन आती है मतलब तो हमारे तक वो आनी जरूरी है ना. बिल्कुल, आप IC मेंबर हैं, आप तक तो आएगी आएगी. जी जी, ओके ओके, ऑल राइट. हाँ जी शालू जी बताइए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, बताइए.
आई हैव अ क्वेरी, मतलब मैं क्या होता है कि जब दो फीमेल पर्सन है और उनमें गुड टच और बैड टच का ऐसा चल रहा है कुछ, अगर वो उसमें किसी में कंप्लेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस एक्ट में सिर्फ एक लिमिटेशन है कि कोई मेल कंप्लेंट नहीं कर सकता, बट फीमेल कर सकती है। इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि वो कंप्लेंट आप किसके खिलाफ कर रहे हैं, अग्रेसर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट कंप्लेनेंट शुड बी फीमेल ओनली। यस साक्षी जी बताइए। मैम एक्चुअली जब जैसे हम ये प्रोसीडिंग्स करेंगे तो इसमें सबसे पहले वी नीड टू इंक्लूड एचआर और वी डोंट हैव टू। नो यू कैन नॉट इंक्लूड द एचआर। इनफैक्ट एचआर को होता क्या है जनरली, आपको मैं बताती हूँ, जनरली ये कंप्लेंट सबसे पहले एचआर के पास मेल पे आती है, तो एचआर की ड्यूटी होती है वो बताना कि भाई इसका जो राइट चैनल है वो है पॉश या आईसी, आप इसको, मैं वहाँ पर डाइवर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आईसी इसको टेक ओवर कर लेती है। इट इज़ इन द आईसीज हैंड, एचआर गोज आउट ऑफ इट। इफ़ यू स्टिल कन्वर्स विद द एचआर दैट मीन्स यू आर ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एज एन आईसी मेंबर। ओके, जैसे कि जब हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे वन द मीटिंग, कहीं कोई कैमरास कभी आगे कुछ होता है, कोई कैमरास वगैरह कहीं नहीं है, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ, यू हैव नो प्रूफ, देन इट इज़ ओनली व्हाट यू आर सेइंग। एंड लाइक आई सेड कि आपके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ कह रहे हो। इनफैक्ट अगर मान लीजिए समथिंग इज दैट इज नॉट गुड, सिक्स सेंस वाला चीज या व्हाटसोएवर, अगर हमारे पास एविडेंस, वी डोंट हैव द एविडेंस टू प्रूव, तो हम उस केस में फिर क्या करेंगे? बुरा मानेंगे, क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि एविडेंस हो, और अगर एविडेंस नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, बट आवाज़ तो उठा ही सकते हैं ना, ताकि जो अग्रेसर है उसको थोड़ा सा तो डर लगेगा, आगे 10 बार सोचेगा ना। देखिए जिसकी मंशा ऐसी होती है उसको कहीं ना कहीं डर लगता है हमेशा, और अगर आपने एक बार उसके कंडक्ट को बाहर खुले में बोला है ना, तो दूसरी बार वो करने से पहले 10 बार सोचेगा ज़रूर। तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमेशा ये सोच के आप चुप नहीं रह सकते कि ये तो किसी ने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि कोई देखे ना। और ये सभी चीज़ें देखिए आईसी मेंबर्स को पता होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एविडेंस नहीं भी है तो भी वार्निंग दी जाती है, कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स में कुछ ना कुछ निकल के आता ही है क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान। केस में जैसे कि सेम ही जगह पर काम करना हो, वो फिर दोनों को ही थोड़ा सा फीमेल को सही नहीं लगे, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो रिक्वेस्ट की जा सकती है। कई बार ऐसा आईसी, मैंने आपको बताया भी था कि आईसी ऐसे में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, किसी की सही या गलत प्रूव नहीं होती, तो कोशिश करी जाती है कि उनका टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए। यस आई थिंक स्वाति जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जानना चाहती थी कि अगर हमें कंप्लेंट रेज करनी है तो उसके लिए कुछ वेबसाइट है या लिंक ऐसी कुछ है क्या, उस पर हम कंप्लेंट डाल सकते हैं? बिल्कुल, आईसी की वेबसाइट, आईसी की ईमेल आईडी आपको दी हुई होगी, आप वहाँ पर करिए कंप्लेंट रेज। ओके मैम, और उसका सॉल्यूशन यानी उनको क्या फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिए जाएगी अगर हम कुछ कंप्लेंट रेज करते हैं? वो तो जब आप कंप्लेंट रेज करेंगे तब पता चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंप्लेंट कैसी है। ओके मैम, अगर किसी स्टूडेंट की आती है तो भी हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं कर सकते, स्टूडेंट करेगा। आप स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं कि बेटा आपकी ये कंप्लेंट है, तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी कंप्लेंट लिखित में भेजें। ओके। यस रतनदीप जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसे कि साक्षी मैम ने भी क्वेश्चन किया था कि अगर इफ इन केस कैमरा अगर अवेलेबल नहीं है और कोई मेंबर भी नहीं है, मतलब कोई विटनेस नहीं है, तो मान लीजिए कोई सीनियर अथॉरिटी हुई, ठीक है, तो उस केस में मतलब कभी होता है ना कि उनको एक बार ऐसा मतलब होता है कि लड़कों के हाथ में, मेरे को तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई है भी नहीं मेरे पास कोई प्रूफ, तो कुछ लड़कों को ऐसा होता है ना कि उनको मिल जाता है कि हाँ मेरे एक बार मेरे पास कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो मेरी तो हिम्मत बढ़ गई, मेरी हिम्मत बढ़ गई। हाँ जी। देखिए आजकल तो बहुत अच्छा सबके पास फ़ोन होता है, उसमें क्या बढ़िया रिकॉर्डिंग की आवाज़ आती है, सब होता है। कहीं ना कहीं अगर आपको पता है, वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना। जब आप सूटकेस अपना लेके जाते हैं तो एक वो क्या होता है, वो लोहे की चेन टाइप होती है और एक ताला भी होता है। वो बात और है कि चाबी खो जाती है हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अपना ही सूटकेस निकालने में आफत आती है फिर।
बट जो भी है, फिर आपको कहीं ना कहीं अपने लिए खुद सुरक्षा का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि ये बंदा समझ ही नहीं रहा भाई, और पिछली बार मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी और ये इसी बात के कारण निकल गया कि कोई इसके पास इसके खिलाफ सबूत नहीं था, तो सबूत बनाइए। बनाने का मतलब में रचना नहीं है, बनाने का मतलब है कि कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि पैटर्न तो समझ ही जाएंगे ना उस व्यक्ति का तब तक आप। यस मैम, और मान लीजिए कि सेम पर्सन के साथ ना होके उससे सेम पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो फिर वो दूसरा पर्सन अपने आप देखेगा, वो अपने सामान की सुरक्षा करेगा, आप तो अपने की कर रही है ना। ओके ओके मैम, थैंक यू। और बताएं, एनीबडी एल्स? यस, बताइए श्वेत प्रकाश जी। Ma'am, last question. Is there any level of punishment, like as our IC members, we should be aware about what sort of? See, there is no level of punishment. जो primarily जो punishments हैं वो आपके service rules में mentioned होती हैं, but practically speaking हम लोगों को allegations, nature of allegations और जो complaint है उसको देखना पड़ता है कि वो कितनी grievous है। तो अब देखिए, किसी ने एक रोटी चुराई है तो उसको 10 साल के लिए तो अंदर नहीं कर सकते ना आप, तो वही सिस्टम यहाँ लगेगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिगेशंस यू विल हैव टू इशू ईदर अ वार्निंग और मे बी अ डिमोशन और अ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, और फॉर ग्रेव एलिगेशंस देन डिसमिसल इज द वे, बिकॉज आप फांसी तो दे नहीं सकते आईसी में, ठीक है, आप इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते, एक तरीके की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है, तो यही है आपके हाथ में, यही कर सकते हैं आप। Okay, but is it like if somebody has been accused of POSH, so does it affect their future employment? नहीं, देखिए, क्योंकि पॉश की सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उसमें फिर पॉश की डिटेल्स नहीं आएंगी, मिसकंडक्ट या कुछ इस तरीके का लिख के आएगा। बट मैंने देखा है, देखिए इंडियन सिनेरियो है, जो चीज़ बैन होती है वो सबसे पहले फेमस होती है, सब लोग देख लेते हैं उसको, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से पता तो चलता ही है। तो आप जाहिर तौर पे आपकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और आपकी रेपुटेशन इज एट स्टेक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। So that should be aware with the employees, like they should be like very careful about it. Of course, they should anyways be careful. अगर आगे की प्रोफेशन का खतरा नहीं भी है तो भी केयरफुल तो होना ही पड़ेगा ना, मतलब ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा तो इस चक्कर में आप कितनी बारी होटल से तौलिया चुराएंगे। My concern is like किसी ना किसी का सूटकेस खुल जाता है, फिर वायरल हो जाता है वीडियो। Yes, ma'am. So as an IC member or like who is responsible for like making employees aware about all sort of the ultimate responsibility lies with the employer. That is what is happening today in the form of this. See, as a well-meaning citizen, as an IC member, of course it is your responsibility. If somebody comes to you seeking that information, it becomes your responsibility to impart that information to them. But the ultimate responsibility of creating awareness lies with the employer. The duty of the employer, so to say. All right, on this note, I think we can end this session today. It's been a very enlightening session for me as well. Sandhya ji, hello ma'am, I want to know that IC member have to take meeting. I could not read the whole thing. Like this about awareness of the other women employees. Yes, of course. IC member को नहीं लेनी है, इसी तरह के awareness sessions होंगे. So I being an IC member, maybe you guys can call me again and we'll have another such session, right? We'll have it regularly now. यस तन्मय जी, हमारी टीम को अवेयर करने के ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि हमारा पता ना हो, ये ना हो, तो कैन भी मतलब ऐसा सेशन ले सकते हैं इन्फॉर्म करने के लिए, ये चीजें ऐसी है वैसी है। आप लोग अगर आप देखिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पॉश के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है, क्योंकि एक वो वाला मेरे दिमाग में आ रहा है, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड एंड बोथ फॉलिंग इनटू द डिच, है ना, वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप उनको बताने लगो कि देख भाई सबूत नहीं छोड़ने हैं, उसके आगे तो कुछ ही कर ले। तो अब ये तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहते ना। हमारा अवेलेबिलिटी है, कौन पोस्ट नंबर है, इसके लिए सेशन लेकर उनको बता सके। सेशंस देखिए दे आर ऑलवेज गुड, बट डिपेंड ये करता है कि कौन पढ़ा रहा है।
क्योंकि मैम आपकी अवेलेबिलिटी ब्रांचेस बहुत सारे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप तो देखिए अवेलेबिलिटी क्या है, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, हम तो एक्सटर्नल मेंबर हैं। ओके डन मैम, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए ताकि बिल्कुल, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। okay, thank you all of you. I think we will close this session today in the hope of meeting once again on popular demand, hopefully. All right, see you all. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. इतने